नमस्कार, मैं अनीता न्यूज ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाश बायजूस, ये नाम पूरे देश में आज शायद घर घर में जाना जा रहा है, खासकर हमारे देश के छात्र और छात्राओं के बीच। इस कड़ी में हम अंडमान के छात्र एवं छात्राओं से गुजारिश करते हैं कि वे हमारी आज की पेशकश को बहुत ध्यान पूर्वक देखें और आकाश बायजूस की ओर से पूरे देश में चल रहे उनके प्रोग्राम्स को समझें, बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आकाश बायजूस की तरफ से पूरे देश में उनके 45 केंद्रों में परसों यानी 10 अगस्त 2022 को एनडे 2022 लॉन्च हुआ। आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम यानी एनडे 2022 के तहत छात्र और छात्राओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को परखने के लिए और साथ ही आकाश बायजूस द्वारा दी जा रही निःशुल्क सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामी जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। Akash Port Blair strives to reach out to the students of these islands and bring them closer to the dream on pursuing medicine and engineering. Let's have a quick look on Akash Port Blair. For all medical and engineering aspirants who have dreams in their eyes, work in the resolve and the capability to work towards bettering their lives and that of those around them, ANTHE is their gateway. ANTHE has been attempted by over 33 lakh students since 2010. As we begin the 13th season of ANTHE this year, its aim is to discover and nurture talent and help students take the first step towards their dream of a career in medicine and engineering. So my journey from to ANTHE, I got 100% me a boost or a kickstart. Scholarship due to which I volunteered. I would now like to invite our respected director sir to step forward and felicitate the champions. I would like to welcome Mayank Gulia, who opted for 12th cum 1-year medical course and has secured the state toppers rank in JEE Mains. Who is also we have Kajal, who opted for 12th cum 1-year medical, who secured AIR of 25th rank in All India in ANTHE 2020. Duty Director sir to please step forward. We have Abhirup Karak, student of 1-year integrated classroom course of class 10, Olympiads and NTSE. He is the CBSE class 10th center topper 1. Along with Samdas has secured the AIR 163 in ANTHE 2020 with 100%. Good morning, Namaskar. My name is Bhupinder Thakur and I am from the operations team, the corporate operations team of Akash Baijus from Delhi. To begin with, on a lighter note, I am jealous of all you people. मुझे आप सबसे बहुत ईर्ष्या है because you live in a place which is next to paradise, and me coming from Delhi with all the stress, pollution, so obviously I'm a little bit of that jealousy factor is always there. So I do pray humbly to God that Andaman, the islands, remain the same all across. So that's what is from my side. The other thing is ANTHE has been a talent hunt examination which Akash is conducting for almost like
15 years now. Till date, 33 lakhs students have appeared in ANTHE so far. A bit of the success stories of ANTHE we've just seen in the AV that has been played. I come here to Andaman to represent the legacy of an organization called Akash, the legacy of our chairman, Mr. J.C. Chaudhary, the legacy of a person who started it all in 1986 with merely 6 students. And today we are graduating 350,000 students per year. When I was growing up, it was humanly impossible, we thought, in school times, that to attain a perfect score in any of the competitive exams is next to impossible. It's a Herculean task. And now you can see, last year, 3 perfect scores in NEET. A year before that, 2 perfect scores in NEET. And I am proud to say, all the 3 perfect scores last year in NEET were all our alumni. That is the kind of motivation, that is the kind of content, that is the kind of education we like to deliver in Akash. We've got one success story amidst us. And I was amazed when I heard that story for the first time from Gyan sir, and we discussed it over the phone. And that story is of none other than Mayank sitting here in front of us. So now incidentally, Mayank is enrolled with us for a 2-year program for medical. That's NEET. And he tops the state in an engineering exam, which is JEE Mains. So which is evident that yes, a round of applause for Mayank. Thank you very much. So it is evident from the fact that the kind of education that we are providing in Akash, the kind of curriculum, the kind of content that we have, it prepares the student for the competition in holistic view. So we will not bind anyone, you just have to go for NEET, you just have to go for engineering. Also, there are specifications for sure, but there are exceptions like Mayank also, who are multifaceted, multi-talented. So all the best Mayank for your future, all the best Mazum, all the best Kajal, all the best Abhiroop for your future, all the best Akash. Port Blair, you made a splendid beginning. Let's have a glorious and NEET this time around also. And a special mention to all the islanders here. Thank you for the hospitality. I've been roaming around in the island, and the kind of hospitality that I've received from Andaman, from Port Blair, is extraordinary. So thank you very much. All the best. और चूंकि सोसाइटी ने उनको हेल्प की है, और इनफैक्ट ये हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, जो बच्चे इस मोड से किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं। यही कामना इसलिए कर रहा हूं कि जितना आप स्वस्थ रहेंगे, जितनी लंबी आप लोगों की आयु होगी, उतने ही लाखों करोड़ों ऐसे सीरीज आप लोग और प्लान करते रहेंगे। Of ANTHE 2022. Sir, in Port Blair we have started just last year. One batch is over. हमारी पहली बैच जो आई है 2022 में, उसके रिजल्ट्स अभी शेयर करे थे हमने थोड़ी देर पहले, जिसमें Integrated classroom course of Olympiads. आप सभी लोगों के साथ परसों और कल में ही सभी के साथ कनेक्ट किए। सर, ये जो स्कीम के बारे में आप लोगों ने बताया है, गर्ल चाइल्ड को आप लोग टारगेट कर रहे हो, बट एग्जाम्स जो आप कंडक्ट कर रहे हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या एग्जाम का कोई टोकन अमाउंट है या ऐसा? ये फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम्स है। It is Anybody can yes, anybody can enroll either by visiting our center or either by visiting our website. They can register for this exam for free. आप हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, जैसे एडवर्टाइजमेंट करके जैसे उनके तक पहुंचे मैसेज इन्फॉर्मेशन। और कुछ आइलैंड्स में तो इनफैक्ट नेट कनेक्टिविटी है, तो से हैवलॉक है, जैसे रंगत है, मानदर है, दिल्ली में भी शायद मुझे लगता है बहुत लोग, तो वहां से ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आके स्टे करके यहाँ पे एक दिन लिख के चले। ऑनलाइन में वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बच्चा चीट करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, आप कैसे मॉनिटर करेंगे? Not possible.
नॉट पॉसिबल, चीटिंग पॉसिबल नहीं है. देयर इज अ लीड टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन, राइट. सो अगर वो उतने स्टिपुलेटेड टाइम में अगर क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, सी इफ आई हैव टू चीट आई हैव टू रेफर टू सम अदर ऑप्शन, राइट. सो उतने टाइम में इफ विल नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट आंसर, वो आंसर वुड गेट लॉक्ड. सर जो पूछना चाह रहा था तो यहाँ पूछ लिए जी, बिल्कुल वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस. मैं ये सोच रहा था कि अगर आप लोग जैसे कांटेक्ट करने के लिए जो वहाँ के जो प्रधान जिला है ना, इन लोगों को अगर आप थोड़ा सा बताते हो कि आप लोग सेटअप कर, हम मीडिया के थ्रू तो हमसे जितना अगर हम करेंगे, हमारा चैनल जहाँ जहाँ आप जो देख रहे हैं उनको डेफिनेटली पता चलेगा. बट वॉट अनदर पार्ट इज वॉट बायजूस, आकाश बायजूस कैन डू एज वेल एज कि जैसे जिलाध्यक्ष को आप लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया कि हम ये कर रहे हैं. अगर आप लोग एक जिलाध्यक्ष को बोले तो उसके अंदर में बहुत सारे पंचायत आते हैं, वो अपने प्रधान को बोलेंगे तो वहाँ पे गांव में सर्कुलेट हो जाएगा एंड दिस चिल्ड्रन कैन कम अप. वेरी गुड आइडिया, इट्स वर्केबल, इट्स वर्केबल. हम लोग उसी दी वेरी आइडिया सर. हम लोग का जो ये एग्जाम है ये नवंबर में रहेगा, एग्जैक्टली, राइट. तो लॉन्च ये अभी अगस्त में इतना एडवांस में करने का रीजन ही यही है कि हम लोग इंटरैक्ट करें प्रेस के साथ, लोकल पॉपुलेशन के साथ, वी गेट इनपुट्स. अभी ये देखिए कितना अच्छा इनपुट निकल के आया, एंड दिस इज वर्केबल, टोटली वर्केबल, राइट. एंड एड्रियन ज्ञान सर, वी कैन टेक इट अप फॉर श्योर सर. थैंक्स फॉर द आइडिया. Right. So I guess any more questions, or we'll interact one to one if it is required, right? Yeah. So thank you very much, ladies and gentlemen, for sparing out your time. चलिए अभी हम बिहार से आई एक छात्रा काजल जी से बात करते हैं आप लोगों के लिए. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काजल जी जो हैं 2020 में एंथे में टॉप ऑल ओवर इंडिया में 25वीं रैंक पर थी. हेलो काजल जी. तो आप हमारे स्टूडेंट दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, यही कि कंटिन्यूसली मेहनत करनी चाहिए. प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, सबके आते हैं. नहीं समझना चाहिए कि बस हमें को प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता सामने वाले के भी प्रॉब्लम्स होते हैं. तो बिना रुके मेहनत करनी चाहिए और भी टीचर्स की बात माननी चाहिए. हम जानना चाहेंगे कि आपने किस फील्ड में जो 25th पोजीशन ऑल इंडिया आई थी, कौन सी क्लास में या कौन से एग्जाम? ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम इनके माता पिता इनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है कि उनकी बेटी जो है स्टूडेंट्स आकाश बायजूस में और ओवर इंडिया में 25वीं रैंक पर आई. एक्चुअली मैं 3 साल पहले कोर्ट ले आया था, जिस टाइम आकाश में जी जी. और क्वालिटी एजुकेशन की यहाँ अंडमान में बहुत कमी थी. ओके, जब पता चला, सबसे पहले पता चला जब आकाश में यहाँ आ रहा है, बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम था. जब से आकाश आया है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अप हुआ है. आकाश के सारे टीचर्स भी अच्छे हैं और बच्चों पर ध्यान देते हैं. और धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ भी अंडमान में तो अटेंस में भी पढ़ने का स्टैंडर्ड अप होगा. मैम आपको कहना चाहेंगे? जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मतलब यही मानना है और मुझे अच्छा लग रहा है. काफ़ी अच्छा हो गया है, तो अच्छा है और बच्चे के लिए. हमसे बात करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे कि आप लोगों ने सुना कि काजल और उनके माता पिता, उन्होंने भी ये कहा कि आकाश बायजूस के आने से हमारे अंडमान निकोबार के जो एजुकेशन लेवल है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है. एंड काजल जी ने हमारे आप दर्शकों को ये भी बताया है कि बस मेहनत करते रहिए और जो आपने सोचा है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, ज़रूर हासिल होगा. धन्यवाद. चलिए अभी हम हमारे आइलैंड में कई फील्ड्स में, कई अलग अलग लेवल्स में टॉप किए हुए मिस्टर मयंक गुड़िया जी से बात करते हैं. मयंक भी एक स्टूडेंट है और जानते हैं कि उन्होंने किन किन क्लासेस में, किन किन एग्जाम्स में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए. हेलो मयंक जी. तो इस सब चीज़ की शुरुआत ऐसे होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एंट्री का एग्जामिनेशन दिया था, तो उसमें मेरे को 3rd रैंक आई थी आइलैंड में. तो मुझसे कुछ स्कॉलरशिप मिली थी और फिर मैं एनरोल हुआ था आकाश के 1 ईयर बैच में. ओके, फिर 11th के बाद 12th में ही आकाश यहाँ पे आया था. तो जैसे ही एनरोल हुआ तो यहाँ का जो सिस्टम है, एटमॉस्फेयर है, पूरा बदल गया था और यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो गई थी. बच्चों को भी लगा कि अब हम इतने बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ रहे हैं तो मतलब हमें कुछ अच्छा करना है, रिजल्ट अच्छा बनाना है. तो
जो हमें फिर मॉड्यूल्स दिए गए, हमारी बुक्स दी गई, फिर जो हमारे मेंटर्स थे, हमारे टीचिंग स्टाफ थे, उन्होंने हमें लगातार सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो। और कॉन्फिडेंटली जब उनसे पूछते थे हम अपने डाउट, तो हर डाउट अच्छे से क्लियर करते थे और ये बताते थे कि इसका एक ऐसा ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है। तो जब ऑल्टरनेट सोल्यूशन आता था तो टिप्स मिलती थी कि हम अपनी स्पीड कैसे कम करें। तो इससे को यूज़ करते हुए हमने पहले एग्ज़ाम दिया और कोविड के चलते हमारे 2 बार एग्ज़ाम हुए थे। तो जो टर्म 1 के एग्जामिनेशन था वो पूरा OMR बेस्ड था और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए भी एग्ज़ाम के लिए भी हम उसी पे प्रैक्टिस करते थे। तो उसका ये रिजल्ट रहा कि 5 सब्जेक्ट में 100 में से 100 आ गए टर्म 1 में। और फिर जो टर्म 2 हुआ वो रिटर्न बेस्ड था, यानी सब्जेक्ट। तो उसमें जब रिजल्ट बना तो वो फिर थोड़ा सा रहता है राइटिंग का, तो उसमें भी अच्छा मार्क्स है और आईएम में 3rd पोजीशन रैंक होल्ड किया और अपने स्कूल में टॉप पोजीशन आई। उसके बाद फिर आया था JEE एग्ज़ाम। तो यहाँ के जो टीचर्स थे वो हमें प्रेरित करते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठो, कम से कम कॉन्फिडेंस आता है अच्छा। जब हम उसमें बैठते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि जब हम जिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस समय हमारा रिएक्शन क्या रह सकता है। तो मेरे बारे में ये एग्ज़ाम के लिए हमने फॉर्म भरे थे और उसमें बैठते एग्ज़ाम दिया। न्यू पैटर्न था क्योंकि CBT है वो, जिसको हम जानते नहीं हैं इतना, क्योंकि हम तो नीट के लिए प्रिपरेशन। फिर CBT अच्छे से कर दिया क्योंकि हमारे जो टेस्ट हुए थे, जो इंटरनल असेसमेंट थे, वो हमारे CBT मोड में ही होते थे। तो उसका प्रैक्टिस था कि हम कंप्यूटर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमें पहले से फाउंडेशन दी गई थी, तो उसी में मेहनत करते हैं। और टीचर्स ने भी हमें गाइड किया कि आप इतनी बार तो कम से कम मेहनत करो कि आप अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आने चाहिए, ताकि कोई अगर सवाल ऊपर नीचे भी करके दे दें तो आप घबराएं नहीं। और रिजल्ट अच्छा रहा फिर ये मैं आईएलटीएस फर्स्ट रैंक मेंस में सेशन 1 में होल्ड किया और उसके बाद सेकंड मेंस का दिया था। और पहले का रिजल्ट इतना अच्छा था कि इस बार आईएलटीएस फिर पोजीशन पे पहुंची। कॉन्ग्रेचुलेशन। हम जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर के प्लान्स, ये एग्ज़ाम चेक माई कॉन्फिडेंस और उसी कॉन्फिडेंस के चलते मैंने एग्ज़ाम अच्छे से लिखा था। अब उसका रिजल्ट आ गया तो मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहूँ। हमसे बात करने के लिए मयंक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम जानेंगे कि उनके माता पिता इन सारी जो इन्होंने उपलब्धियाँ हासिल की हैं उनको लेकर कितने खुश हैं। हमारे बच्चों को बोलना चाहेंगे? सभी को यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे के साथ रहिए, अच्छे से मेहनत करवाइए, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, जैसी भी सिचुएशन है जी हाँ, सही सुना और देखा आपने। आकाश बायजूस अपने विद्यार्थियों को निःशुल्क ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक नए प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स और अन्य नई क्लासेस के साथ इसी तरह हमारे युवा को उनकी पढ़ाई के क्षेत्र में मदद कर रही है और करते रहेगी। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम अंडमान के छात्र और छात्राओं से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आकाश बायजूस जंगली घाट पोर्ट ब्लेयर से संपर्क करें और उनके द्वारा आने वाले दिनों में होने वाले प्रोग्राम्स और सुविधाओं को जानें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।